So in the last class, we were discussing about the numerical of the Banker's algorithm. Okay, and in this sequence, we have calculated the need matrix in the last class. Now, our next question was whether the system will be in a safe state or not. So in today's class, we are going to discuss whether the given snapshot of the system, given a snapshot of the example, what we were discussing in the last class, whether the system is in a safe state or not, right? I hope each and everyone have the numerical that we have discussed in the last class. Each and everyone have the numerical. I'm just sharing my screen. If anyone have not attended the last class, then just note it down. I was discussing about this numerical where total 5 processes, 3 types of resources, and these are the allocation matrix, maximum and the available. Now on this basis, we have to calculate whether the given system is in a safe state or not. First of all, we have calculated the need matrix. Now we have to calculate the safe sequence, right? So I'm just coming to my whiteboard. Total we have 5 processes, P1, P2, P3 and P4. Allocation में A, B, C, max, A, B, C, available, A, B, C. I hope it is visible to everyone. Process for the process P0, it is 0, 1, 0, then 2, 0, 0, then 3, 0, 2, 2, 1, 1, and it's 0, 0, 2. These are the allocated resources. For maximum 753, then it's 322, then 902, 222, and 433, and the available are 332. Okay, so see, in the last class we have discussed how to calculate the need matrix. So once again, I'm calculating the need. नीड के लिए हमने क्या बताया था, मैक्सिमम से एलोकेशन को माइनस कर देना है. नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन, और माइनस करना कैसे है, ए से ए को, बी से बी को, राइट. सो 7 4 3 for the process P0, the need is 743, then 122, then next one is 902 से 302 को माइनस करना है, एक स्पिन होल्ड करना है. हेलो, नाउ 902 से क्या करना, 302 को माइनस करना है. हाउ मच इट विल बी, 600, 600. Now after that, इसके बाद अगला क्या है, this one minus this one, 0 1 1. Now इसमें से इसको माइनस करना है, 4 3 1.
इतना काम हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, यहां तक की वैल्यू लास्ट क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम in a safe state. Our next question is the system in a safe state? So for finding the safe state, what we are doing, we have to just check each and every process whether this process is able to execute up to their maximum limit or not. हर एक प्रोसेस अपने मैक्सिमम लिमिट तक प्रोसेस रिसोर्सेस को एक्सेस करके एग्जीक्यूट कर पाने की पोजीशन में है या नहीं है, राइट? फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस P0। प्रोसेस P0 से, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि प्रोसेस P0 से आप स्टार्ट करो क्लास, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं, बट फॉर द सेफर साइड कि हमारे एरर के चांसेस कम हो, हम हमेशा टॉप से बॉटम जाते हैं, फिर अगेन टॉप से बॉटम आते हैं। आप लोग भी यही पैटर्न को फॉलो करेंगे, राइट? तो हमने क्या किया, फॉर द सेफर साइड हमने प्रोसेस P0 से स्टार्ट किया है। अब देखो क्या प्रोसेस P0 की जो रिक्वायरमेंट है कितने की है, 743। क्या इतनी रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल हैं कि हम इसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पाए? अवेलेबल कितनी, 332, यानी ए टाइप की 3, बी टाइप की 3 और सी टाइप की 2, है ना? और प्रोसेस P0 की रिक्वायरमेंट कितनी है, ए टाइप की 7 चाहिए और है कितनी, 3 अवेलेबल है। Class, am audible? Is there any issue related to internet? Class, any issue? I hope my voice is very clear to everyone. Please acknowledge anyone. My voice is clear to everyone. Okay, okay, got it. So process P0 की जो नीड है वो है ए टाइप की 7 चाहिए और ए टाइप की अवेलेबल कितनी है, 3। यानी जो सीक्वेंस हमारा बनेगा उसमें प्रोसेस P0 से स्टार्टिंग तो 100% नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? सीक्वेंस में मेरा प्रोसेस कौन सा स्टार्ट करेगा पहले, ये पॉइंट क्लियर है। P0 से स्टार्टिंग क्यों नहीं होगी, P0 सबसे पहले एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सकता है, बिकॉज P0 को ए टाइप की 7 चाहिए थी और ए टाइप की अवेलेबल कितनी, 3 अवेलेबल है। यहां तक क्लियर है सभी को? नाउ अब अगर P0 से स्टार्टिंग नहीं होगी तो हम P1 को देखते हैं। P1 को देखा हमने, P1 की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 2 2, 1 2 2, अवेलेबल कितनी है, 3 3 2। और अगर आपको याद हो जब आपने बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ी थी जहां पर आपने सेफ्टी एल्गोरिथम पढ़ा था, रिक्वेस्ट should be less than available, need should be less than equal to available। तो क्या यहाँ पर need available से कम या इक्वल है, आई मीन कमी तो है। और देखो ए टाइप की 1 चाहिए, 3 अवेलेबल है, बी टाइप की 2 चाहिए, 3 अवेलेबल है, सी टाइप की 2 चाहिए, 2 अवेलेबल है। यस, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस P1 से हमारी स्टार्टिंग हो सकती है। प्रोसेस P1 अपना रिसोर्सेस को वहां से जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी उतनी इसको मिल जाएंगे एंड प्रोसेस P1 अपना एग्जीक्यूट कर सकता है। अच्छा, अब जब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर लेगा तो उसके बाद होगा क्या, जो रिसोर्सेस उसको अलोकेटेड थी पहले से, आफ्टर एग्जीक्यूशन प्रोसेस P1 को जो रिसोर्सेस अलोकेटेड थी अब वो रिलीज हो जाएंगी। जब रिलीज करेगा तो ये जो रिसोर्सेस थी ये जाएंगी यहाँ पर लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस में जाके ऐड हो जाएंगी। तो ये 200 जाकर के अवेलेबल में ऐड हो गया। अब अवेलेबल कितना हो जाएगा, ए टाइप में 2 ऐड कर दो 5 हो जाएगा, बी टाइप में 0 है, सी टाइप में 0 है, यानी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। यानी प्रोसेस P1 जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद जो हमारा अवेलेबल रिसोर्सेस है वो हो जाएगी 500। यहां तक किसी को डाउट, रेज योर क्वेरी, एनी डाउट? हमारे अवेलेबल 500 कैसे हो गई, किसी को डाउट? क्लास, रेज योर क्वेश्चंस। एनी क्वेरी? प्रोसेस P1 से हमने स्टार्ट क्यों किया है और 532 और 500, देखो बेटा 332 तो पहले भी था,
मैं इसको हटा देता हूं। देखो 332 तो पहले से था ना, अब उसमें से P1 जब एग्जीक्यूट होगा तो जो P1 को अलोकेटेड थी, अलोकेटेड कितनी थी 200, वो जाकर के इसमें ऐड होगी। तो हमने क्या किया, हमने इसमें 200 ऐड कर दिया। अब जब 200 ऐड करोगे तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये तो आएगा 532। अभिषेक क्लियर? अभिषेक, अभिषेक रिस्पॉन्ड करो। ओके, सो नाउ अब P1 मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, P1 का काम खत्म, ठीक है। अब इसके बाद P2 पे हो। अब देखो P2 की रिक्वायरमेंट कितनी है, 600 की रिक्वायरमेंट है P2 की, अवेलेबल कितनी है 532, यानी P2 को A टाइप की 6 चाहिए और A टाइप की अवेलेबल कितनी 5, यानी फिर से P1 के बाद सीक्वेंस में P2 नहीं आएगा। P2 will not come into the sequence after that, after P1. So अब हम क्या करेंगे, P2 को भी स्किप कर देंगे, आ गए P3 पे। Now P3 requirement is 011 and available resources are 532. Okay, so you can see clearly need less than available. तो अगला मतलब क्या होगा, P3, अगला नंबर P3 का आया। अब जैसे P3 का नंबर आएगा, जब P3 एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, P3 को जो अलोकेटेड रिसोर्सेस नहीं होंगी, दैट विल बी एडेड इनटू द अवेलेबल रिसोर्सेस। नाउ अब अवेलेबल कितनी हो जाएंगी, ये 211 जाकर के 532 में ऐड हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 7 527 314 213। यहां तक क्लियर क्लास? After execution of P3, this available resources will be 7, 4 and 3. यहां तक किसी को डाउट? Class, any doubt? Okay. So now after P3, now again, अब देखो यहां पर भी P3 के बाद हम चाहें तो देखो P0 को भी कर सकते हैं, P2 को भी कर सकते हैं, बट हम जनरली क्या करते हैं, एक ऑर्डर में जाएंगे, हम टॉप टू बॉटम पहले चले जाएंगे, देन व्हेन वी विल कवर ऑल द प्रोसेसेस, देन अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। नाउ P1 P3 के बाद P4 आया, P4 को हमने चेक किया, P4 की रिक्वायरमेंट कितनी है 431 की, अवेलेबल कितनी है 743, राइट। अगेन P4 would be executed, or as soon as P4 will execute, the list of resources, allocated resources will be added to the list of available resources. तो अब 743 से कितना हो जाएगा, 002 इसमें ऐड हो जाएगा, it will becomes 745। अब इस साइड के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, P1 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया। नाउ अब हम फिर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फिर से गए P0 पे। नाउ हमने देखा P0 की रिक्वायरमेंट कितनी है 743 की, अवेलेबल कितनी है 745, यानी नाउ P0 कैन एग्जीक्यूट, P0 कैन एग्जीक्यूट। अब P0 जब एग्जीक्यूट करेगा, नाउ लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, सॉरी लिस्ट ऑफ अलोकेटेड रिसोर्सेस ऑफ P0, दिस मच विल बी एडेड टू द अवेलेबल रिसोर्सेस। ये जाके अवेलेबल में जब ऐड होगा, ये कितना है 010 तो 755, राइट। P0 एग्जीक्यूट हो गया। अब बचा कौन सा, P2। P2 की रिक्वायरमेंट कितनी है 600 की, है ना, P2 की रिक्वायरमेंट 600 की है, अवेलेबल कितनी है 755। तो होना क्या चाहिए, प्रोसेस ऐड हो जाएगा, आई मीन प्रोसेस ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हुआ। अब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, इसको जो अलोकेटेड रिसोर्सेस थी दैट विल बी रिलीज्ड एंड एडेड टू द अवेलेबल 302 10 5 7। now you can see here all the processes have from P0 to P4, all the processes have executed up to their maximum limit,
यानी प्रोसेस P0 को मैक्सिमम जितनी चाहिए थी उसने उस लेवल तक एग्जीक्यूट किया। प्रोसेस P1 को मैक्सिमम जितना चाहिए था उस लिमिट तक एग्जीक्यूट किया। ऑल द प्रोसेसेस हैज एग्जीक्यूटेड अप टू देयर मैक्सिमम लिमिट in some order, and since there exists a safe sequence, so the system will be in a safe state. सारे क्वेश्चंस में अगर ऐसा कोई सीक्वेंस जो सिस्टम के सारे प्रोसेसेस को कवर कर रहा हो, सिस्टम के सारे प्रोसेसेस को कवर कर रहा हो अप टू देयर मैक्सिमम लिमिट, और ऐसा कोई अगर सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, then we can say the system is in a safe state. In this question, since there exists a safe sequence, hence system will be in a safe state. Now class, any query from your side? जहां पर जिसको जो डाउट्स हो प्लीज रेज योर क्वेरीज। क्लास, जिसको जो डाउट्स हो रेज योर क्वेरीज। क्लास, किसी के कोई डाउट्स फॉर दिस क्वेश्चन? एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड? Okay. So this is the second part of the question, right? And I have already said in the last class that there will be 3 sections in the question. The very first section was to calculate the need matrix. Second part will be to calculate whether the system in a safe state or not. And the third part is there will be a request from a particular process, and we have to check whether this request will be granted or not. I mean to say कि जैसे मेरे पास इसमें 5 प्रोसेस है ना, अब इन 5 प्रोसेस में से किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस से एक रिक्वेस्ट आएगी, और फिर क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये रिक्वेस्ट ग्रांट होगी कि नहीं होगी। तो जब आपको बैंकर्स एल्गोरिथम बताया था हमने, तो हमने आपको वहां पर 2 एल्गोरिथम बताई थी। एक बताया था बैंकर्स एल्गोरिथम, सॉरी सेफ्टी एल्गोरिथम, और एक बताया था रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, है ना। तो यहाँ पर क्या काम करना होगा, सबसे पहले रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम से हम चेक कर लेंगे एलोकेट कहां पर करना है, कहां नहीं करना है, और एलोकेट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में बच रहा है कि नहीं बच रहा है। देखो सिंपल सा मेरा मतलब कहने का ये है कि जब भी कभी क्वेश्चन आएगा बैंकर्स एल्गोरिथम में कि चेक करो ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ग्रांट होगी कि नहीं होगी, है ना, तो वहां पर हमारा हमेशा एक सूत्री कार्यक्रम होगा। हम बिना कुछ सोचे आंख बंद करके रिक्वेस्ट को ग्रांट कर देंगे, ठीक। अब रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई रिक्वेस्ट हमने ग्रांट कर दी। अब रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में बच रहा है, देन द रिक्वेस्ट दैट आई हैव ग्रांटेड अर्लियर वी विल ग्रांट देम परमानेंटली। जो रिक्वेस्ट हमने पहले ग्रांट कर रखी थी हम उसको परमानेंटली ग्रांट कर देंगे। और अगर सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में नहीं बच रहा होगा तो हम अपने पुरानी पोजीशन पे रोल बैक कर जाएंगे। मतलब ये है भाई, देखो अगर मैं ये कहूं कि मेरे हाथ में एक पेन रखना है, अब इस पेन को हाथ में रखने से मेरे हाथ पे क्या साइड इफेक्ट्स पड़ेंगे, क्या वॉइस क्लियर नहीं है, ओके। अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है रिदास में, या मतलब अभी कुछ ठीक है? अब उसको ये चेक करना है कि भाई इस पेन को मेरे हाथ में रखने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो जिस बंदे को मुझे हाथ में पेन देना था वो क्या करेगा, आंख बंद करके मुझे उसने मेरे हाथ में पेन पकड़ा दिया। अब पेन पकड़ाने के बाद वो चेक करेगा क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब जो पेन उसने दिया है ठीक दिया। अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो क्या करेगा, पेन को वापस ले लेगा। वही काम यहां पर होगा कि जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा फॉर एडिशनल रिसोर्सेज, हम उन रिसोर्सेज को टेम्परेरी बेसिस पे इमीडिएटली ग्रांट कर देंगे। आई एम अगेन इंसिस्टिंग माय पॉइंट्स।
on the temporary basis, immediately we allocate the resources to the process. Now, after allocation, we will check whether our system is in a safe state or not. If system is in a safe state, तो जो हमने temporary allocate किया था उसको permanently grant कर देंगे. क्लास 1 सेकंड होल्ड करना बस. गुड आफ्टरनून सर. ओके, सो हमारी टास्क क्या होगी? रिसोर्सेस को इमीडिएटली ग्रांट कर दो. ग्रांट करने के बाद अगेन वॉइस क्लियर नहीं आ रही. So let's start with the question, and the question was request. Let me check the question first. Yeah, a request from process P1 of 102. In the same question, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं. प्रोसेस P1 से रिक्वेस्ट जा रही है 102 की from process P1. Now the question is whether this request will be granted immediately or not. हम अपने पुराने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. राइट, ये मेरा क्वेश्चन था. अब देखो, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट गई है, सबसे पहले जब आपको रिक्वेस्ट रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम आपको पढ़ाई गई थी, अगर आपको याद होगा, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट क्या था? आपको चेक करना था कि इसकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस P1 की नीड से लेस या इक्वल है कि नहीं है. क्यों चेक करते थे? क्योंकि हमने एक कंडीशन क्या ली थी कि जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम में इंटर करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिक्लेयर देयर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा की डिमांड कर दी हो, है ना? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? whether this request is less than equal to available or not, sorry, less than equal to need or not. 102 प्रोसेस P1 की नीड कितनी थी? 122 की. प्रोसेस P1 की जो नीड है 122 की नीड है, उसने डिमांड कितने की है? 102 की, है ना? यानी रिक्वेस्ट लेस देन नीड है. यानी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ. अगर ये स्टेप ट्रू होता था तो क्या करते थे? गो टू स्टेप 2. स्टेप 2 क्या है? रिक्वेस्ट शुड बी लेस देन अवेलेबल. ऐसा तो नहीं कि जो उसने रिक्वेस्ट की हो उतनी रिसोर्सेस सिस्टम में अवेलेबल ही ना हो, ये पॉसिबिलिटी भी है. तो 102 लेस देन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है. अब क्या करना है? रिसोर्सेस को अलोकेट कर देना, यानी प्रोसेस P1 को 102 अलोकेट कर देना. देखो ध्यान से देखना, प्रोसेस P1 को 102 जब अलोकेट करेंगे, 200 पहले से अलोकेट है, 102 और अलोकेट करेंगे तो 213 हो जाएगा. ये 000 ही रहेगा, ये 0 और 2 ये क्या हो जाएगा? यहां तक तो डाउट किसी को? क्लास किसी को डाउट यहां तक? ये 200 से 302 कैसे हुआ? किसी को डाउट? जल्दी रिस्पॉन्ड करिए भाई. ओके, अच्छा, अब ये देखो, जब प्रोसेस P1 को अलोकेटेड 302 हो गई है और आपने ये मैट्रिक्स कैलकुलेट कैसे की थी? दिस वन माइनस दिस वन, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन. तो यहाँ की जब वैल्यू चेंज हुई है तो ये वैल्यू भी अब चेंज हो जाएगी भाई.
प्रोसेस P1 की नीड पहले 122 थी, अब आपने इतनी एलोकेट कर दी तो उसकी नीड कम नहीं हो जाएगी? मान लो पहले मुझे 2 पेन चाहिए थे और आपने मुझे 1 पेन और दे दिया, तो अब मेरी नीड तो कम हो जाएगी ना। तो ये 102 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब जब इसमें से माइनस करोगे, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 कर क्या रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, 2 और 2 2 0। यहां तक डाउट किसी को? क्लास एनी डाउट्स फ्रॉम हियर? यहां तक किसी को डाउट? अच्छा, दूसरी चीज, ये रिसोर्सेस आपने कहां से उठा करके इसको ऐड किया है? भाई कहीं रिसोर्सेस होंगी ना, वहीं से तो ला करके यहाँ पे ऐड किया है। ये होगी कहां पर? अवेलेबल में से। यानी अवेलेबल में भी इतनी कम हो जाएंगी। अवेलेबल जो 332 पहले थी, उसमें से इतनी आपने प्रोसेस P1 को एलोकेट कर दी। अब जब एलोकेट कर दोगे तो ये कम हो जाएंगी यहाँ पर। तो अब यहाँ कितना बचेगा? 2 3 5। जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा 2 3 0। अब अवेलेबल कितनी होंगी? 2 3 0। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। कोई डाउट किसी को? नाउ अब हमारा काम क्या है? हमने क्या बताया था? जो रिक्वेस्ट आए उस रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दो। रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया। अब चेक करो ग्रांट करने के बाद क्या सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में बच रहा है। और सेफ स्टेट में बचने का एक ही तरीका है, क्या सिस्टम में मेरे सेफ सीक्वेंस आ रहा है। अगर सीक्वेंस आ रहा होगा तो सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में होगा, और अगर सिस्टम सेफ स्टेट में होगा तो इन जो रिक्वेस्ट थी इस रिक्वेस्ट को हम परमानेंटली ग्रांट कर देंगे। अगर सेफ सीक्वेंस नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? रोल बैक कर जाएंगे, यानी जो क्वेश्चन पहले था हम वही पोजीशन में फिर से आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। देखो, प्रोसेस P0 की नीड कितनी है? 743 की। अवेलेबल कितनी है? 230, यानी P0 से स्टार्टिंग नहीं होगी। P1 की नीड कितनी है? 020 की। अवेलेबल कितनी है? 230, यानी P1 से स्टार्टिंग हो जाएगी। अब जब P1 से स्टार्टिंग होगी तो P1 रिलीज करेगा। जब रिलीज करेगा तो ये जाकर के इसमें ऐड हो जाएंगे 302। अब अवेलेबल कितनी होगी? 532। ठीक है, अब P1 का P2 आया। P2 की रिक्वायरमेंट कितनी है? 600 की। अवेलेबल कितनी है? 5। अगेन कम पड़ गए। P3 भी आया 011, अवेलेबल है 532। P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P3 जब एग्जीक्यूट होगा ये अलोकेटेड वाली जाके अवेलेबल में ऐड हो जाएगी 211 743। राइट, नाउ P4 आया। P4 की नीड कितने की है? 431 की। अवेलेबल कितनी है? 743। इसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है। प्रोसेस P4 हो गया। ये जाकर के अलोकेटेड वाली इसमें ऐड हो जाएंगी 745। नाउ फिर से ऊपर गए। P0 रिक्वायरमेंट कितनी है? 743 की। अवेलेबल कितनी है? 745। P0 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P0 को अलोकेटेड कितनी थी? 010 की। ये इसमें ऐड कर दो 755। नाउ प्रोसेस P2 600 755 अवेलेबल है। ठीक है, प्रोसेस P2 आया। P2 अब जब रिलीज करेगा 302 10 5 7। नाउ अब जब ये सीक्वेंस आ जाए, अब ये सीक्वेंस को आने के बाद एक स्टेटमेंट नीचे लिखना होगा। स्टेटमेंट को जरा गौर से सुन लेना। सिंस आफ्टर अलोकेटिंग द रिसोर्सेस, या वी कैन से आफ्टर ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस P1, system exist in a safe state, hence the request of process P1 will be granted immediately. जो क्वेश्चन का पार्ट था, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट ये था whether the request of process P1 102 will be granted immediately or not। तो यहाँ पर आप ये सीक्वेंस कैलकुलेट करने के बाद नीचे एक लाइन लिखोगे, since the request of after allocating the request of process P1, system remains in a safe state, hence the request will be granted immediately. Now class, raise your queries. This is so for the banker's algorithm. Now raise your queries.
पूछिए भाई, किसको जो पूछना है। एनी डाउट्स? क्लास, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? क्लास, एनी डाउट? Okay then. So I'm assuming each and every concept is very clear to everyone. So let me share my screen. Now the next question is, इसी में हमारा next question है, can request for 330 by process P4 be granted or not? तो क्लास ये क्वेश्चंस आपको अपने आप खुद अटेम्प्ट करने हैं। ट्यूटोरियल क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। आप लोग की स्क्रीन शेयर कराएंगे जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। पहली रिक्वेस्ट तो प्रोसेस P1 से आ गई 102 की, जो हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया कैसे मेरा सिस्टम सेव स्टेट में बच रहा था। अब उसी के आगे प्रोसेस P4 से रिक्वेस्ट जा रही है 330 की। अब आपको ये बताना है कि ये रिक्वेस्ट ग्रांट होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली प्रोसेस P0 से 020 की रिक्वेस्ट ग्रांट होगी कि नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपको आप समझ लीजिए, आपका होम असाइनमेंट है। कुछ पूछना है किसी को? अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूं। कुछ पूछना है किसी को? ओके तो डेडलॉक डिटेक्शन में बेसिकली हम लोगों ने क्या चेक किया कि एक तो हम क्या करेंगे, अलाउ सिस्टम टू इंटर इनटू डेडलॉक स्टेट। हम अपने सिस्टम को डेडलॉक में जाने दें, फिर वहां से डिटेक्ट करके वापस ले आए, है ना। कैसे? डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम्स के थ्रू। जैसे हमने बैंकर से डिटेक्ट किया कि सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में है कि नहीं है, डेडलॉक वाली स्टेट में है कि नहीं है ना। और फिर उसके बाद हम रिकवर कर लेंगे उसको। अब रिकवरी कैसे करेंगे वो हमारा अगला प्रोसेस होगा। रिकवरी से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और वेट फॉर ग्राफ। क्लास इस मीटिंग के 3 मिनट बचे हैं, मैं मीटिंग को रिस्टार्ट कर लूं क्योंकि अदरवाइज फिर पूरा टॉपिक उसमें हो नहीं पाएगा। आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए, मीटिंग को रिस्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है। क्लास मीटिंग को रिज्वाइन कर लीजिए।